ओके पीपल, वी विल गो विद एंडोजेनिक मूवमेंट्स ज्योग्राफी में, ठीक है। इंटरनल मूवमेंट्स, अपर लेयर्स ऑफ द मैंटल, तो आपके भाई साहब अपर लेयर्स मैंटल के मूव होते हैं, ठीक है। रीजन, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स इन द मेंटल रिलीज ट्रिमेंडस एनर्जी कॉजिंग मूवमेंट्स इन द मेंटल, तो आपके रेडियोएक्टिव मूवमेंट्स होते हैं मेंटल में और यहाँ पे मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट्स, ये किसमें होता है? बेस्ड ऑन वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट्स क्या हो जाएगा? इट इज बेस्ड ऑन वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड लैंडफॉर्म्स, ठीक है। It is based on velocity by some slow movements occurring continuously like formation of mountains and continents, तो आपके slow movements होते हैं like formation of mountains and continents, sudden movements in the form of events like earthquakes, volcanoes, ये sudden movements, ठीक है। earthquakes हो गए, volcanoes हो गए। डायरेक्शन, horizontal movements हो गए, upward and downward movements हो गए, horizontal movements हो गए, upward and downward movements हो गए। landforms, continent building creating continents, plateaus and highlands, माउंटेन बिल्डिंग, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, ठीक है। ये सब आपके भाई साहब हो गए, ओके। टेक इन द करेक्ट ऑप्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्लो मूवमेंट्स इन द अर्थ्स इंटीरियर डिपेंडेंट? लैंडफॉर्म्स, वेलोसिटी और डायरेक्शन। वेलोसिटी, ठीक है। हाउ आर द इंटरनल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ क्लासिफाइड? द इंटरनल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, तो आपके वेलोसिटी क्या है, ठीक है, इस मूवमेंट का वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन क्या है, and landforms they produce. On the basis of their velocity, the internal movements are classified as follows. Slow movements, the movements which occur continuously and lead to the formation of mountains and continents are known as slow movements. तो जो आपके भाई साहब movements होते हैं which occur continuously and lead to the formation of mountains and continents are known as slow movements. बहुत धीरे वाले जो movements होते हैं, ठीक है। The movements which occur continuously and lead to the formation of mountains and continents are known as slow movements. Sudden movements क्या होंगे? The movements which occur as an event and cause earthquake and volcanic eruptions are known as sudden movements, ठीक है। On the basis of the direction, the internal movements are classified as follows. Horizontal movement होते हैं भाई साहब, ठीक है, और आपके upward and downward movement होते हैं, ठीक है, leads to the formation of blocks and rift valleys respectively, ठीक है। On the basis of the landforms created, the internal movements are classified as follows. Continent building leads to the formation of continents, plateaus, etc. माउंटेन बिल्डिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स ड्यू टू द फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, तो यहाँ पे भाई साहब माउंटेन्स का मूवमेंट होता है ड्यू टू फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, ठीक है। Okay, so the internal movements of the earth are classified on the basis of their velocity, directions and the landforms they produce. So उनका velocity क्या है, direction क्या है, landforms क्या है होता है, ठीक है। On the basis of the velocity, the internal movements are classified as follows. तो पहला तो हो गया आपका slow movements. Slow movements मतलब the movements which occur continuously and lead to the formation of mountains and continents are known as slow movements. तो बहुत धीरे धीरे जो movements होते हो, धीरे 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 movements हुआ है, ठीक है। So the movements which occur continuously, ये continuously हो रहे हैं, ठीक है। These movements are occurring continuously and lead to the formation of mountains and continents. So इसमें भाई साहब आपके mountains और continents बने हैं, इसको हम बोलेंगे slow movements. जितने भी आपके continents, countries बने हैं या mountain ranges बने हैं, वो एकाएक नहीं बने हैं, वो धीरे 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 बने, ठीक है। दैट इज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दीज लैंड फॉर्मेशंस टू हैपन, तो इनको हम बोलेंगे स्लो मूवमेंट्स, ठीक है। सडन मूवमेंट्स, अचानक से भाई साहब अर्थक्वेक आ गया या वॉल्केनो आ गया, ठीक है। द मूवमेंट्स व्हिच अकर एट द इवेंट एंड कॉज अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस आर नोन एज सडन मूवमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट्स जो फटाक से होते हैं, ठीक है, समझ लो अर्थक्वेक आ गया या वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, सडन मूवमेंट्स, ठीक है। On the basis of the direction, the internal movements are classified as follows. Horizontal movement leads to the formation of fold mountains. तो ऐसे horizontal movement, तो ये आपका भाई साहब fold mountains बन रहा है, ठीक है। Horizontal movements lead to the formation of fold mountains. Upward and downward movement, तो upward downward movement जो होता है leads to the formation of block mountains and rift valleys. तो इससे आपका block mountains बनता है और rift valleys बनते हैं. On the basis of the landforms created, the internal movements are classified as एक मूवमेंट हो गया आपका कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, प्लेटूज एक्सेट्रा, तो कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, प्लेटूज बनते हैं एक्सेट्रा। माउंटेन बिल्डिंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स ड्यू टू द फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, ठीक है। तो आपके माउंटेन्स भी बनते हैं फोल्डिंग और फॉल्टिंग से, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? स्लो मूवमेंट्स, तो आपके स्लो मूवमेंट्स क्या हो जाएंगे, माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट, जिसको हम ओरिजेनिक बोलते हैं। देखो इस तरह से ये माउंटेन्स बन रहा है, तो ऐसे ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे किसी रेत से पहाड़ जब बनाते हैं तो कैसे करते हैं, रेत के बंडल्स को ऐसे लाते रहते ऐसे पाउंडे मारते हैं तो ऐसे अर्थ में भी
ऐसे जो आपके मूवमेंट्स हैं ये ऐसे करते 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 फोल्ड माउंटेन से पहाड़ बनाते हैं, ठीक है। सो माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ओरोजेनिक, ठीक है। ये आपके फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, फॉर्म्ड व्हेन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड करते 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 ऊपर तक आते हैं, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो एकदम अंदर से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। causes pressure working towards each other in the horizontal direction, तो ये horizontal direction में प्रेशर आ रहा है और इसको ऊपर कर रहा है, ठीक है। लेयर ऑफ द सॉफ्ट रॉक्स फॉर्म फोल्ड, तो आपके सॉफ्ट रॉक्स भाई साहब ऐसे फोल्ड्स बनाते जाते हैं, ठीक है, ऐसे फोल्ड्स बनाते हैं। हाई प्रेशर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्केल फोल्ड्स विद इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, तो आपके भाई साहब हाई प्रेशर आता है, ठीक है। हाई प्रेशर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्केल फोल्ड्स विद इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स अपलिफ्टेड एंड फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म, तो ये आपके सरफेस ऑफ द अर्थ भाई साहब क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा और इससे बनेगा आपके फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल द हिमालयस, द अरावलीज, द रॉकीज, द एंडीज एंड द एल्प्स आर द मेजर फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपके जितने भी हिमालयस हैं, अरावलीज हैं, रॉकीज हैं, एंड्स एंड द एल्प्स, दे आर द मेजर फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, मेजर फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स क्या हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरनल मूवमेंट्स हॉरिजॉन्टल वेव्स कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर इन हार्ड रॉक्स फॉर्म फॉल्स ड्यू टू कंप्रेशन, तो ये आपके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हैं, तो क्या बना रहे हैं भाई साहब, फॉर्म्स फॉल्स ड्यू टू कंप्रेशन, तो ऐसे टक से ऐसे इसको जैसे समझो दो चीजों को आपने ऐसे कंप्रेस कर दिया तो बीच वाला चीज ऊपर आ जाएगा, है ना, तो ऐसा आपका यहाँ पे ऐसे आ रहा है और ये ऊपर चला जा रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरनल मूवमेंट्स हॉरिजॉन्टल वेव्स कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो बीच वाला जो चीज है वो आगे ऊपर आ गया, टुवर्ड्स ईच अदर इन हार्ड रॉक्स फॉर्म्स फॉल्स ड्यू टू कंप्रेशन, सो दिस इज हाउ इट इज फॉर्मिंग कंप्रेशन, ठीक है। पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट्स इज लिफ्टेड, तो ये आपके पैरेलल फॉल्ट्स है और ये भाई साहब ऊपर चला गया, पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट्स इज लिफ्टेड, इट लुक्स लाइक अ ब्लॉक व्हिच इज नोन एज अ ब्लॉक माउंटेन, इसको हम बोलेंगे भाई साहब ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। द हिल टॉप्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स आर फ्लैट्स एंड देयर स्लोप्स आर स्टीप, ठीक है, तो हिल टॉप्स भाई साहब आपके क्या होते हैं, ये जो हिल टॉप होगा ये फ्लैट होगा और स्लोप भाई साहब स्टीप होगा, मतलब देखो ऐसा स्टीप स्लोप है, अगर आप यहाँ पे खड़े रहेंगे तो एकदम स्टीप स्लोप ऐसे दिखेगा आपको, है ना, ये स्टीप स्लोप दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो लैंड है वो फ्लैट है, क्यों फ्लैट है समझ में आ रहा है, पहले पूरा लैंड ही फ्लैट था, है ना, अभी ये प्रेशर करते करते ये टप से ऊपर आ गया, तो मतलब ये वाला जो फ्लैट पोर्शन है वो ऊपर रह जाएगा, भले ये माउंटेन है, ठीक है, भले ये माउंटेन है लेकिन ये आपको स्टीप लगेगा और ये वाला आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, फ्लैट लैंड लगेगा, ठीक है। द हिल टॉप्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स आर फ्लैट्स and their slopes are steep, so these are basically slopes are steep and the hill tops are flat, ये hill tops आपके क्या हो जाएंगे, flat, ठीक है। For example black forest mountains in Europe and the Meghalaya plateau of India, तो आपका देखो इस तरह का है, यहाँ पे आपको बहुत स्टीप दिखेगा लेकिन ऊपर का जो एरिया है वो फ्लैट एरिया है, ठीक है, ऊपर का एरिया आपका फ्लैट एरिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स इन यूरोप एंड द मेघालय प्लेटू ऑफ इंडिया। रिफ्ट वैलीज क्या होती है भाई साहब, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑन द अर्थ सर्फेस act in opposite direction and increase tension resulting in the fractures in the rock, तो आपके भाई साहब ऐसे आ रहे हैं तो फ्रैक्चर हो गया तो भाई साहब अंदर चला जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्ट इन द तो जब देखो ऐसे आ रहे हैं तो बीच वाला पोर्शन ऊपर आ रहा है, जब ये ऐसे जा रहे हैं तो बीच वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा, है ना समझ में आ रहा है, जब ये दोनों ऑपोजिंग फोर्सेस हैं, ठीक है, दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर देन दिस पोर्शन विल कम अप and when they are drifting apart from each other obviously this portion will go down. Horizontal movements on the earth surface act in opposite direction, तो भाई साहब ये opposite direction में act कर रहे हैं and increase tension resulting in the fractures in the rock, तो यहाँ पे आपका rock में क्या हो जाता है, fracture हो जाता है, ठीक है। Two fractures may develop side by side in the earth's crust and land between two fracture subside, तो आपका भाई साहब fracture होगा और ये land जो है तो subside कर जाएगा, ठीक है, this will subside. The subsided deep part is called the rift valley, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, rift valley, this is known as the rift valley. Both the slopes of a rift valley are steep, तो ये वाला स्लोप भी देखो और ये वाला स्लोप भी देखो, they both are steep, ठीक है, they both are basically steep. For example, the rift valley of river Narmada in India, the Great Rift Valley of Africa and the Rhine Rift Valley of Europe, ये सारे जितने भी आपको rift valleys दिख रहे हैं they are very steep, ठीक है, यहाँ पे लैंड जो है तो अंदर चला गया, the land has actually gone in. Continent building movement जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिरोजेनिक movements occur towards the center or from the earth center towards the earth's crust, तो आपका देखो ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग इफेक्ट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एपिरोजेनिक मूवमेंट्स occur towards the center or from the earth center towards the earth's crust, तो अर्थ के सेंटर से अर्थ के क्रस्ट में ये मूवमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, ओके। A vast part of the earth's crust is uplifted and continents are formed,
तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है तो ऊपर आ जाता है। अ वास्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अपलिफ्टेड, और इससे भाई साहब कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। इफ द ओरिजिनल कॉन्टिनेंटल पोर्शन ऑफ द क्रस्ट सबसाइड्स बिलो द सी लेवल, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सी बेड। तो ये भाई साहब सी बेड का पार्ट हो जाता है, ठीक है। इट बेसिकली फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सी बेड। ओके, टेक इन द फॉर्म फॉर द इंफॉर्मेशन of a rift valley, which of the following processes should occur in the earth's crust? Compression, tension or weathering? So this will be tension, ठीक है। Which of the following is a fold mountains? The Satpuras, the Himalayas or the Western Ghats? The Himalayas are a fold mountain. इसीलिए देखो हिमालय का जो हाइट है वो हर साल थोड़ा बहुत बढ़ता रहेगा। हिमालय का जो हाइट है वो थोड़ा बहुत बढ़ता रह रहा है क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है और ये हाइट बढ़ता जाएगा, द हिमालयस, ठीक है। The formation of extensive plateaus is a result of which type of movement? Mountain building, continent building or horizontal? So this will be basically continent building, ठीक है। Choose the correct alternative. The slopes of the block mountains are steep, parallel or gentle? Steep, ठीक है। steep मतलब ऐसे खड़ा पहाड़ मिलेगा आपको, ठीक है। स्लोप एक होता है बस अब धीरे 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 ऊपर जाता हुआ माउंटेन, लेकिन ये ऐसा खड़ा पहाड़ मिलेगा, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली स्टीप, ठीक है। अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है? ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग processes of formation of fold mountains in chronological order. If the pressure is very high, the complexity of fold increases. Fold mountains are formed. As a result, the surface of the earth gets uplifted. Because of the transferred energy waves from the interior of the earth, the pressures work towards each other in horizontal direction and the layers of the soft rock form folds, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? Because of the transferred energy waves from the interior of the earth, the pressures work towards each other in horizontal direction and the layers of the soft rocks forms folds. If the pressure is very high, the complexity of the fold increases. As a result, the surface of the earth भाई साहब क्या हो जाएगा? Uplift हो जाएगा। Fold mountains are formed. Distinguish between block mountain and fold mountain. Block mountain और fold mountain में क्या क्या है भाई साहब है? Block mountains are formed when layers of rocks between two parallel fractures or faults get uplifted. Fold mountains are formed when large scales are formed on the surface of the earth get uplifted due to horizontal high compressive pressure of the layers of the rocks. The formation of block mountain is the effect of internal movement of hard rocks. तो hard rocks की भाई साहब internal movement हो रही है। Formation of fold mountains is the effect of internal movement of soft rocks. Black Forest mountains in Europe and Meghalaya plateau of India have been formed by this method. The Himalayas, the Aravallis, the Rockies, the Andes, the Alps are some examples of fold mountains, ठीक है। सडन मूवमेंट्स क्या होते हैं? देखो अर्थक्वेक्स ये आपके सडन मूवमेंट्स होते हैं और इसके लिए कोई भी तैयार नहीं रहता है। जैसे हिमालय का जो हाइट राइज हो रहा है वो बहुत ही ग्रेजुअली हो रहा है, ठीक है, लेकिन सडन मूवमेंट्स कुछ अचानक भयानक में कोई मूवमेंट हो जाना, ठीक है। सो अर्थक्वेक्स बेसिकली आर अ डेवास्टेटिंग मूवमेंट्स इन द अर्थ्स इंटीरियर कॉज ट्रिमेंडस टेंशन इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो पूरा भाई साहब अर्थ क्रस्ट हिलने लगता है, ठीक है। When the tension goes beyond limits, the energy is released in the form of waves. As a result, the Earth's surface trembles. Measurement: the magnitude of the earthquake is measured in the Richter scale. तो ऐसा एक स्केल होता है, तो जब कंपन प्रोड्यूस होता है तो रिक्टर स्केल में ऐसा रोटेट होता जाता है, ठीक है। The magnitude of the earthquake is measured by the Richter scale. Causes इसके क्या क्या हो जाएंगे? Moving of the plates. तो अर्थ के बहुत डीप डाउन अंदर आपके टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं और ये प्लेट्स भाई साहब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर खिसक जाते हैं। जैसे आप समझो कि आपने बुक्स को एक ऊपर एक रखा है, एक बुक को अगर आप निकालने जाओगे तो या दूसरे बुक्स गिरेंगे भाई साहब। तो ऐसे ही अर्थ के अंदर भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और इनके सडन मूवमेंट्स की वजह से ये प्रेशर वेव्स जनरेट होते हैं और यही प्रेशर वेव्स आगे चल के क्या बनाते हैं? अर्थक्वेक्स, ठीक है। सो मूविंग ऑफ द प्लेट्स, कोलाइडिंग ऑफ द प्लेट्स, कभी कभी प्लेट्स आपस में कोलाइड करते हैं, कभी कभी मूव कर रहे हैं। प्लेट्स स्लाइडिंग वन अबव द अदर, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर स्लाइड कर रहा है। फॉर्मिंग ऑफ फ्रैक्चर्स इन द रॉक लेयर्स ड्यू टू टेंशन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो आपके भाई साहब रॉक लेयर्स में फ्रैक्चर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में टेंशन डेवलप होता है। अकरिंग ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, तो आपके वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ठीक है। सो ये सारे जो हैं आपके एक्सटर्नल होते हैं और ये सडन चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो आप देखो फोकस एंड एपिसेंटर, यहाँ पे देखो एक अर्थक्वेक या कोई इंपैक्ट जनरेट हुआ, ये फोकस होता है और यहाँ से भाई साहब प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स जनरेट होते हैं, ये आते हैं भाई साहब अर्थ के सरफेस पे। तो इस फोकस के जस्ट ऊपर जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। अभी समझो इस चीज को, ठीक है। समझ लो इंडिया पूरा एक जगह है और लेट्स से दिल्ली में एपिसेंटर है,
तो दिल्ली में सबसे ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन आजू बाजू के एरिया में भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा। शायद बॉम्बे तक इस अर्थक्वेक को हम फील ना कर पाए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो जो भी प्लेस इस एपी सेंटर के ऊपर होगा उसमें अर्थक्वेक का सबसे बड़ा नुकसान होगा। क्लियर है? ओके, सो फोकस एंड एपी सेंटर, टेंशन कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग। तो यहाँ पे प्राइमरी वेव्स जनरेट होते हैं, तो वेव्स जैसे वैसा वैसे जनरेट होते रहेंगे और एक्यूमुलेट होते रहेंगे। ठीक है, a place where the tension mounts up and high energy is released is called the center of the earthquake। तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब सेंटर ऑफ द earthquake। it is called the focus और hypocenter। इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, फोकस या hypocenter। energy waves scatter in all directions from this center। थोड़ा पानी पी लीजिए, कॉफी दूं? नहीं, ओके। एनर्जी वेव्स स्कैटर इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम दिस सेंटर। तो इस सेंटर से भाई साहब एनर्जी वेव्स आपके स्कैटर हो रहे हैं। ठीक है, ओके। The place on the earth's surface where the energy waves reach first and which experience the first tremor is called the epicenter। जो आपका ऐसा जो पहला जो वेव जहां पे पहुंचता है, ठीक है, एकदम जो फोकस के ऊपर होता है, यहाँ पे भाई साहब डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ और ये जो डिस्टर्बेंस है वो जस्ट ऊपर तक पहुंचा, इसको हम बोलेंगे एपीसेंटर। और सबसे बड़ा नुकसान किसी भी अर्थक्वेक का इस एपीसेंटर पे होता है। ठीक है, so the place on the earth's surface where the energy waves reach first and which experience the first tremor is called the epicenter। it is perpendicular to the focus and also the nearest place on the earth's surface। तो ये भाई साहब फोकस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है और अर्थ सरफेस के सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है, अर्थ सरफेस के बहुत नियरेस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, आपको शायद ये बात मालूम नहीं है कि हर 5 मिनट में कम से कम 600-700 अर्थक्वेक्स होते हैं ऑल ओवर दी अर्थ। 600-700 अर्थक्वेक होते ही रहते हैं, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत कम होता है। ठीक है, उनका इम्पैक्ट बहुत बहुत कम होता है। ऐसे इक्के दुक्के अर्थक्वेक्स ही होते हैं जो भाई साहब तबाही मचा कर जाते हैं। ठीक है, कुछ दिनों पहले मोरक्को में एक अर्थक्वेक हुआ था, देखिए, और अर्थक्वेक में भाई साहब पूरा डायमेंशन ही चेंज हो जाता है। ठीक है, कभी कभी इतने मैसिव और भयंकर अर्थक्वेक हुए हैं कि शायद एक पूरी स्पीशी ही गायब हो गई हो। ठीक है, हम कौन से स्पीशीज हैं? ह्यूमंस कोई स्पीशी नहीं है। कौन से स्पीशीज हैं? हाँ, होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस, होमो मतलब होता है मैन और सेपियंस मतलब वाइस। ठीक है, द स्टार्ट ऑफ बीइंग अ वाइस मैन इज कॉल्ड होमोसेपियंस। सो ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हमारे उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, जैसे होमो इरेक्टस है, जब भाई साहब इंसान ऐसे चलने लगा। ठीक है, होमो इरेक्टस है, होमोसेपियंस है, ये सारे आपके भाई साहब नेचुरल चेंजेस आए हैं। ठीक है, एक जो चीज हमारे एवोल्यूशन में है वो जियोलॉजिकल है। जियोलॉजिकल मतलब ऐसे हमारे बहुत सारे स्पीशीज लुप्त प्राय हो गए हैं जियोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से। जियोलॉजी में कुछ भाई साहब बहुत बड़ा वॉल्केनो आया या अर्थक्वेक आया, पूरी की पूरी नस्ल जो है तो गायब हो गई। ठीक है, जैसे अभी हमारा होमोसेपियंस से हम होमोसेपियंस से, इसके पहले था होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस ने सबसे ज्यादा टाइम तक अर्थ में रूल किया। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम तक। शायद होमोसेपियंस भी उतने ज्यादा टाइम तक रूल ना करे, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं कि शायद हम और 1000 साल ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। सो वी विल बी एबल टू सर्वाइव लेट्स से 1000 मोर ईयर्स, आफ्टर दैट इट विल ऑल गो एक्सटेंट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होमो इरेक्टस ने सर्वाइव किया है। ठीक है, और होमो इरेक्टस से होमोसेपियंस का, होमोसेपियंस क्यों इवॉल्व हुए, व्हाई डिड दे इवॉल्व? देखिए, इंसान का जब एप्स फैमिली से हम डेवलप होने लगे तो हमारे ब्रेन का साइज बढ़ने लगा। ठीक है, जैसे जैसे ब्रेन का साइज बढ़ने लगा ज़्यादा बुद्धि आने लगी और फिर हमारा एवोल्यूशन होने लगा। ठीक है, लेकिन इसका एक प्राइस भी है। ठीक है, जब आपका ब्रेन बढ़ रहा है तो आपकी एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है उसमें। ठीक है, हमारे ह्यूमन बींग्स में ऑलमोस्ट 25% ऑफ आवर बॉडी एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय आवर ब्रेन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो मसल या हमारा जो बॉडी है उसमें ज़्यादा एनर्जी जाएगा नहीं। क्लियर है? इसीलिए हम धीरे धीरे जो स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हैं उनसे फीके पड़ते जाएंगे, जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, ये भाई साहब ह्यूज मसल पावर वाले हैं। कोई टाइगर से हम नहीं भिड़ सकते, कोई एनाकोंडा से भी शायद हम नहीं भिड़ पाएँ। ठीक है, क्योंकि इनके मसल पावर बहुत ज़्यादा है, इनका ब्रेन छोटा है, हमारा ब्रेन ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी ज़्यादा करके ब्रेन के विकास में जाती है। ठीक है, और इसी की वजह से हमारे, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कितने लोग यहाँ पे नॉन वेज हैं? सब लोग? ओके, मैं तो नहीं खाता हूँ। ठीक है, तो नॉन वेज मतलब ये जब आप
मतलब मैंने कभी खाया है आज से 20 साल पहले, उसके बाद छोड़ दिया है। तो ये जैसे आपका ये हड्डी जब आप खाते हैं, हड्डी के अंदर वो बोन मैरो खाते हैं, है कि नहीं, टक 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 निकलता है वो वाला, ठीक है। ये बोन मैरो सिर्फ इकलौती ह्यूमन स्पीशीज खाती है, आपको मालूम है क्यों? और बाकी जितने भी जीव जंतु हैं ये बोन मैरो के बारे में शायद जानते भी नहीं होंगे। आप बोलेंगे कुत्ता तो हड्डी चबाता है, लेकिन कुत्ता जो हड्डी चबाता है उसको समझ में नहीं आता है हड्डी के जो शार्प एजेस हैं उसके मुंह में कट्स प्रोड्यूस करते हैं, और यही कट्स से खून निकलता है, और वही खून वो पीता है, उसको मालूम नहीं है खुद का खून ही पी रहा है। ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपकी बात ये कर रहा हूं कि ये जो आपके बोन मैरो खाने की आदत हमको कहां से आई है। देखो इस चीज को समझो, एवोल्यूशन बहुत मतलब आपका ना चीजों से कनेक्टेड है। तो ये जो हड्डी है, इस हड्डी के अंदर जो बोन मैरो हम खा रहे हैं, ये आदत कहां से डेवलप हुई? मैंने आपको अभी बताया कि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स का डेवलपमेंट होता गया, इनके ब्रेन का साइज बढ़ता गया, ब्रेन का साइज बढ़ता गया तो मसल के साइज कम होते गए, बॉडी का साइज कम होता गया, तो दे वर लेस पावरफुल एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। अभी समझ लो शेर ने शिकार किया, ठीक है, मांस तभी हम लोग खाते होंगे, ठीक है, शेर ने शिकार किया, उसके बाद हाइनास आ गए, ठीक है, मतलब शेर शिकार करके जितना भी मांस खाना था खा गए, फिर हाइनास लोग या जैकल्स लोग आ जाएंगे, फिर वो चीरफाड़ करके चले जाएंगे, बचेगी क्या? हड्डी। क्योंकि हम कमजोर हो गए थे, क्योंकि हम मसल वाइज बहुत कमजोर हो गए थे, इसीलिए हमारे पास वही एक था कि उस हड्डी के अंदर जो चीज है उसको खाना। उसी से हमारा ये आइडिया डेवलप हुआ है, उसी से हमारी ये आदत डेवलप हुई है। बाकी कोई भी स्पीशीज हड्डी के अंदर का बोन मैरो नहीं खाती है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स खाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम एवोल्यूशन के टाइम पे हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट की वजह से हम वीक हो गए थे, इसीलिए हम शेर हाइनास वगैरह से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम वीक होते गए, और इस वीक होने के चक्कर में हम उस आदत को डेवलप कर गए कि हम वहाँ से बेसिकली न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। देखो इन लोगों का भाई साहब टेस्ट हो गया बेट। ओके, सिस्मोग्राम क्या होता है? व्हाट इज अ सिस्मोग्राम? बेसिकली ग्राफ शोइंग द मूवमेंट ऑफ सिस्मिक वेव्स कैन बी जनरेटेड, ठीक है। आफ्टर स्टडिंग दिस ग्राफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक कैन बी नोन। तो भाई साहब अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड वी कैन नो दिस, ठीक है। ओके, एडवांस सिस्मोग्राम्स हैव बीन डिजाइंड व्हिच कैन हेल्प टू मेजर माइक्रोसिस्मिक वेव्स आल्सो। तो माइक्रोसिस्मिक वेव्स को भी हम इसमें मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, क्रैक्स और फ्रैक्चर्स आर डेवलप्ड ऑन द ग्राउंड। तो ये बड़े बड़े भाई साहब क्रैक्स और फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं किसमें? ग्राउंड में, ठीक है। ओके, कॉजेज लैंडस्लाइड्स व्हिच लीड टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स। ऐसे भाई साहब बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, पूरा भाई साहब टर्न ही हो जाता है, ठीक है। तो क्रैक्स और फ्रैक्चर्स आर डेवलप्ड ऑन द ग्राउंड, कॉजेज लैंडस्लाइड्स व्हिच लीड्स टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स। ऐसे भाई साहब बड़े बड़े रॉक्स जो है तो स्लाइड हो जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स द ग्राउंड वाटर चेंजेस इट्स कोर्स। भाई साहब देखो ये वेव्स कैसे जा रहे होंगे, ऐसे ना, ऐसे जा रहे होंगे ऊपर, तो कभी कभी इतना ज्यादा कंपन प्रोड्यूस होता है कि ये ग्राउंड वाटर भी अपना कोर्स चेंज कर देता है, ठीक है। ओके, सम एरियाज गेट अपलिफ्टेड व्हाइल सब माइट सबमर्ज। कुछ एरियाज भाई साहब ऊपर आ जाते हैं और कुछ भाई साहब डूब जाते हैं, ठीक है। सम गेट सबसाइड। इन ओशंस सुनामीज आर जनरेटेड एंड कॉज ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द कोस्टल एरियाज। तो आपके बड़े बड़े सुनामीज जनरेट होते हैं। देखो सुनामी क्या होता है समझ लो, ओशन है ये, ओशन, ठीक है। ओशन के बीच में कहीं पे अर्थक्वेक हुआ है, तो देखो वेव्स क्या है, ऐसे ऐसे आ रहे हैं और थोड़े से बड़े हो ही जाते हैं जब कोस्टल एरिया में आते हैं। अभी थोड़ा सा कंपन प्रोड्यूस हुआ तो ये ज्यादा वेव हुआ, ये दूसरे वाले वेव से बढ़ के और तीसरे वाले वेव से और चौथा, तो जब तक ये भाई साहब शोर पे आते हैं तो एक बहुत बड़ा वेव हो जाता है। तो एक छोटा सा वेव जो कंपन क्रिएट हुआ है डीप डाउन समवेयर इन द सी ड्यू टू एन अर्थक्वेक, बाय द टाइम इट रीचेस द शोर इट इज अ मैसिव वेव, इट इज सम 30-40 फीट हाई, और ये भाई साहब एक बहुत बड़ी बाढ़ होकर आती है, ठीक है, अचानक भयानक में, ठीक है। इन ओशंस सुनामीज आर जनरेटेड एंड कैन कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द कोस्टल एरियाज। इन स्नो कवर्ड एरियाज एवलांचेस में अकर। तो स्नो कवर्ड एरिया में भाई साहब ऐसा स्नो पूरा पूरा स्लाइड होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? एवलांचेस, ठीक है। सो दीज आर नोन एज एवलांचेस व्हिच आर मैसिव स्नोज, ठीक है। बिल्डिंग्स कोलैप्स एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी अकर। तो आपके भाई साहब बिल्डिंग्स कोलैप्स होती हैं और लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों भी होता है। स्नो कवर्ड माउंटेन, जैसे मान लो हिमालय में कहीं पे अर्थक्वेक आया, अगर अर्थक्वेक आया तो क्या होगा, इतने बड़े बड़े मैसिव स्नोज हैं वो भाई साहब सब एक साथ नीचे आएंगे, और जब ये नीचे आते हैं तो इसका मतलब इतना बड़ा पहाड़ होगा, उसमें जो स्नो होगा वो पूरे नवी मुंबई के एरिया जैसा स्नो होगा। एक बर्फ का जो टुकड़ा होगा वहां पे वो इतने बड़े एरिया का होगा, वो जब नीचे आएगा तो पूरा गांव का गांव उड़ा देगा, है ना। सो दीज आर मैसिव, ठीक है। बिल्डिंग्स कोलैप्स एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी अकर
ये आपके बिल्डिंग्स का कोलैप्स होना, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वॉल्केनोज process in which the hot, solid, liquid and gaseous materials are thrown out from the mantle of the earth onto the surface of the earth is called volcanic eruption. Volcanic तो मतलब अंदर का जो mantle या कोर है, जब उसको थ्रो आउट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं volcanic eruption. Volcanoes are classified on the basis of type of volcanic eruption into, पहला है भाई साहब आपका सेंट्रल टाइप और कोनिकल वोल्केनो। तो ये आपका सेंट्रल टाइप और कोनिकल वोल्केनो हो गया, ठीक है। मोल्टेन मैग्मा कम्स आउट थ्रू अ पाइप लाइक वेंट इनसाइड द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे ऐसा पाइप लाइक वेंट है इनसाइड द अर्थ सरफेस और उसमें से मोल्टेन वोल्केनो निकल रहा है। लावा स्प्रेड्स अराउंड द माउथ ऑफ दिस वेंट व्हेन इट कम्स आउट। तो ये लावा जो है तो पूरा माउथ में स्प्रेड आउट हो जाता है। दिस बेसिकली स्प्रेड्स आउट। कोन शेप्ड वोल्केनिक माउंटेन्स आर फाउंड। तो दीज आर कोन शेप्ड वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। ये माउंट फुजियामा एंड माउंट किलिमंजारो, दीज आर बेसिकली माउंटेन्स which are formed out of volcanoes। देखिए वॉल्केनो जो है वो बहुत धीरे धीरे होता है, इसीलिए it does not cause massive loss to life and property। मतलब एक वॉल्केनो को बनने में कम से कम 15-20 साल लग जाएंगे, तो तब तक भाई साहब इंसान वहां से हट जाता है, ठीक है। लेकिन अर्थ को एक ताबड़तोड़ आता है, एकाएक आता है। सुनामी भी बहुत एकाएक आता है, टाइम नहीं मिलता है। लेकिन वॉल्केनोज में काफी टाइम मिल जाता है, ठीक है। फिशर टाइप वॉल्केनो, जेंटल स्लोप मेड ऑफ बॉल्स्टिक लावा, मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम मेनी क्रैक्स। तो ऐसे फिशर टाइप होते हैं, मतलब प्लेन लैंड है, देखो कोई यहाँ पे माउंटेन नहीं फॉर्म हुआ है, और जो मोल्टेन मैग्मा है वो इन क्रैक से निकलता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिशर टाइप वॉल्केनो। मोल्टेन मटेरियल कमिंग आउट विद द इरप्शन स्प्रेड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फिशर्स, ठीक है। वॉल्केनिक प्लेटूज आर फॉर्म, ठीक है। हाँ नाच लो जाके बाहर। द डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया, ठीक है। वॉल्केनोज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। तो ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, कभी कभी क्या होता है इसके अंदर जो लावा होता है वो ड्राई अप हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, मतलब खत्म हो गई इसकी लाइफ, ठीक है। और डोरमैट वॉल्केनो, डोरमैट वॉल्केनो क्या होता है, मतलब ये कभी भी फट सकता है, ठीक है। कभी भी जो है तो लावा धीरे धीरे जमा होकर एक टाइम के बाद फट सकता है ये। और भाई साहब एक्टिव वॉल्केनो क्या है, जिसमें से लावा अभी भी निकल रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस। वन इज बेसिकली एक्सटिंक्ट, जिसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, वो सेफ हो गया है। एक होता है भाई साहब डोरमैट वॉल्केनो, मतलब इसमें से निकलेगा, कभी भी निकल सकता है, ठीक है। और एक्टिव वॉल्केनो मतलब इसमें से हर समय निकल ही रहा है मैग्मा। Eruption is regular even in the present times. Mount Fujiyama in Japan, Mount Stromboli in the Mediterranean Sea, dormant volcano, has not erupted since long time, but many may become active suddenly. ठीक है, ये फटाक से एक्टिव हो जाएगा। Mount Vesuvius in Italy, Mount Katmai in Alaska, Barren Island in India, ये सब आपके mountains हैं। Extinct volcano have not erupted in the past since long time and are not likely to erupt in the future। ठीक है, extinct volcanoes वो volcanoes होते हैं जो बहुत सालों से erupt नहीं हुए हैं और they are not likely to erupt in future, और most likely they will not erupt in future as well। Dormant volcano has not erupted since long time but may become active suddenly, बहुत सडनली ये एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। माउंट किलिमंजारो इन टैंजानिया। इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनोस, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि लोगों को टाइम मिलता है निकलने के लिए, ठीक है। जब कोई एक्टिव वॉल्केनो होता है तो यहाँ से धीरे धीरे लोगों को टाइम मिल जाता है अपना घर बार प्रॉपर्टी छोड़ के जाने के लिए, तो एटलीस्ट लाइफ रिलेटेड जो लॉस है वो उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शंस बिलो ओशन फ्लोर्स में रिजल्ट इन सुनामीज। तो ओशन फ्लोर के नीचे अगर कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा, और जैसे ही लेवल बढ़ा तो जब तक ये भाई साहब शोर पे आएगा एक बहुत बड़ा लेवल आ जाएगा। देखो एक छोटा सा शोर है, ठीक है, एक छोटा सा लेवल है, ये थोड़ा सा ऊपर हुआ, फिर ये थोड़ा सा ऊपर हुआ, फिर जब तक शोर पे आएगा ये कम से कम 30-40 फीट बड़ा वेव हो जाएगा। इट विल बिकम अ 30-40 मीटर वेव, ठीक है। सो वॉल्केनिक इरप्शंस बिलो ओशन फ्लोर्स में रिजल्ट इन, और क्या क्या होते हैं भाई साहब वॉल्केनो से, क्या क्या निकलते हैं, डस्ट निकलता है, स्मोक निकलता है, एश, gases, water vapor etc. remain in the atmosphere and create environmental imbalance। तो
तो ये सारा जो तमाम चीजें जो वॉल्केनिक इरप्शन से निकलती हैं ये एनवायरनमेंट में रहती हैं और काफी सारा इम्बैलेंस जनरेट करती हैं, लॉट ऑफ पोल्यूशन हैपेंस, ठीक है। लेकिन इस पोल्यूशन के लिए हम लोग दायी नहीं है, ये एक नेचुरल कॉज है, दिस बेसिकली ड्यू टू अ नेचुरल कॉज, ड्यू टू वॉल्केनिक ऐश लैंड में बिकम फर्टाइल, ठीक है। ये एक अच्छा चीज है कि वॉल्केनिक ऐश जो है वो आपका कहां पे डिपॉजिट होगा, हाय टेस्ट दे रहा है कि क्या नाचना है, ठीक है। तो ये जो वॉल्केनिक ऐश है ये कहां पे जमा होगा भाई साहब, आपके फर्टाइल और लैंड को फर्टाइल बना देगा। क्यों? क्योंकि वॉल्केनिक ऐश के साथ बहुत सारा मिनरल्स निकलता है और ये मिनरल्स यहाँ पे जमा होगा। ड्यू टू वॉल्केनिक ऐश लैंड में बिकम फर्टाइल, ये फर्टाइल हो जाएगा भाई साहब। बिकॉज ऑफ लावा मेनी मिनरल्स आर फाउंड नियर द अर्थ सर्फेस, तो ऐसे लावास निकलते हैं, देखो काफी सारे मिनरल्स, क्योंकि ये मोल्टेन मटेरियल को अर्थ के अंदर से निकाल रहे हैं। तो लावा बेसिकली ब्रिंग्स आउट मोल्टेन मटेरियल्स फ्रॉम बिलो द अर्थ। न्यू लैंड इज फॉर्म्ड और एट टाइम्स एन आइलैंड में डिसअपियर, तो एक नया लैंड फॉर्म हो जाता है और कभी कभी क्या होता है एक आइलैंड भी हो सकता है डिसअपियर हो जाए, ठीक है, एक आइलैंड भी डिसअपियर हो जाए। एट द माउथ ऑफ द क्रेटर्स ऑफ डेड वोल्केनोस लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन रेन वाटर एक्यूमुलेट्स इन, यहाँ पे भाई साहब रेन वाटर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। प्लेट बाउंड्रीज एंड अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस, प्लेट बाउंड्रीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एरियाज ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। तो प्लेट बाउंड्रीज किससे कनेक्टेड होते हैं भाई साहब, रिलेटेड टू एरियाज ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। तो आपके ये प्लेट बाउंड्रीज हैं और ये भाई साहब एरिया होते हैं किसके, अर्थक्वेक और वोल्केनोस के, ठीक है, अर्थक्वेक और वोल्केनोस के। मोस्ट ऑफ द वोल्केनोस आर लोकेटेड ऑन द प्लेट बाउंड्रीज, ज्यादा करके वोल्केनोस कहां पे लोकेटेड होते हैं, प्लेट बाउंड्रीज में, ठीक है। द अर्थक्वेक जोन्स आर आल्सो सीन इन द बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर एरियाज में। Arrange in chronological order. Arrange the following statements in chronological order in which an earthquake occurs. The Earth's surface vibrates. The plates suddenly move. Due to movements in the mantle, compression keeps on increasing. Along the weak points, that is fault lines, the rocks break apart. The stored energy is released in the form of seismic waves. तो seismic waves में ये stored energy भाई साहब रिलीज हो जाती है। The plates suddenly move, ये पहले होगा। प्लेट्स पहले जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, हमारे 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वर्ल्ड के नीचे, तो ये प्लेट्स भाई साहब मूव होते हैं और जैसे ये मूव होंगे द प्लेट सडनली मूव ड्यू टू द मूवमेंट्स इन द मैंटल, कंप्रेशंस कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो जैसे ये मूव होंगे तो आपके कंप्रेशंस बनेंगे, ठीक है। अलोंग द वीक पॉइंट्स फॉल्ट लाइंस द रॉक्स ब्रेक अपार्ट, जहां पे भी वीक होगा वहां पे रॉक्स टूट जाएंगे, क्योंकि देखो इन प्लेट्स के बीच में आपके रॉक्स भी हैं, जहां पे भी ये प्लेट्स मूव होंगे वहां पे रॉक्स टूटेंगे, रॉक्स ब्रेक अपार्ट। द स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स, तो ये भाई साहब सिस्मिक वेव्स क्रिएट करते हैं एंड द अर्थ सरफेस वाइब्रेट्स, और इसी से भाई साहब आपका जनरेट होता है अर्थक्वेक। तो अर्थ का सरफेस बेसिकली वाइब्रेट कर रहा है, द अर्थ सरफेस वाइब्रेट्स, ठीक है। स्टेट वेदर राइट और रॉन्ग एंड करेक्ट द रॉन्ग वन। सरफेस वेव्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिव वेव्स देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स, तो ये राइट है भाई साहब। एज एन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इन स्नो कवर्ड एरियाज एवलांचेस में अकर, तो एवलांचेस होंगे भाई साहब, ठीक है, राइट, ओके। माउंट वेसिनियस इन इटली इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है, दिस इज बेसिकली रॉन्ग। माउंट वेसिनियस इन इटली इज एग्जांपल ऑफ डोरमैट वोल्केनो। सुनामीज गेट जनरेटेड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस बिलो ओशियन फ्लोट्स, ठीक है, ये आपका राइट हो गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सिस्मिक वेव्स। प्राइमरी सिस्मिक वेव्स आर द फर्स्ट वन टू रीच द अर्थ सरफेस आफ्टर द इमिशन ऑफ एनर्जी इन द अर्थ्स इंटीरियर। Secondary seismic waves reach the Earth's surface after the primary waves. They travel at very fast speed. They have a lesser velocity as compared to the primary waves. The particles in the wrong along the path of these waves move to and fro in the direction of wave. The particles lying in the way of these waves move up and down. ठीक है, up and down move करेंगे, ठीक है। तो medium of travel, these waves can travel through all three states, solid, liquid and gaseous. Secondary waves can only travel through solid medium. While traveling through liquid medium, the direction of these waves change. These waves get absorbed as they enter the liquid medium, ठीक है। The waves are comparatively less destructive than the secondary seismic waves. The waves are more destructive than the primary seismic waves, ठीक है। Earthquakes and volcanoes, the trembling of the earth's surface due to increased tension in the earth's crust because of the movements occurring in the interior is known as earthquake. कहीं ना कहीं अंदर इंटीरियर में कोई भाई साहब ट्रेम्बलिंग जनरेट हुई है। The eruption of hot, solid, liquid and gaseous materials from the mantle of the earth onto the surface of the earth is called volcanic eruption. Some areas get uplifted while some get subsided due to earthquakes. कोई एरियाज ऊपर आ जाते हैं, कोई एरियाज नीचे आ जाते हैं। New land get formed on certain islands can disappear due to volcanic eruption, ठीक है। Most volcanoes are found on the plate boundaries, ठीक है। Due to compression and tension which is generated in the interior of the earth,
plates move in various directions. Plate boundaries are directly related to areas of earthquakes and volcanoes. The part of the plate boundary which slides under the crust subdues. There is loss of material. Such boundaries are called plate consuming boundaries. In areas where new material is coming up onto the earth's crust, they are called plate creating boundaries. Both the processes happen continuously. Because of this, sometimes earth crust gets cracks and magma comes out on its surface. Hence, most of the volcanoes are found on the plate boundaries. Why an earthquake occurs? Earthquake occurs due to energy released by increased tension in the earth's crust by the movements occurring in its interior. तो कहीं ना कहीं इंटीरियर में भाई साहब टेंशन है जिसके वजह से earthquake occur होता है. Some of the major causes of earthquakes are as follows: moving of the plates in the earth's interior. तो plates move कर रहे हैं. Colliding of plates, plates sliding below the other, forming the fractures in rock layers due to tension in the interiors of the earth, occurring of volcanic eruptions. इन सब वजह से भाई साहब earthquake occur हो रहा है. Explain the type of volcanoes on the basis of periodicity of eruption with examples. एक हो गया भाई साहब आपका active volcano, ठीक है. The volcanoes which erupt regularly even in present times are known as active volcanoes. Mount Fujiyama in Japan, Mount Stromboli in Mediterranean Sea. Dormant volcanoes, these volcanoes which have not erupted for a long time but can suddenly become active are known as dormant volcanoes. ठीक है. So these are extinct volcanoes. The volcanoes which have not erupted from a long time in the past and are not likely to erupt even in the future are called extinct volcanoes. ठीक है. What are the effects of earthquakes on the surface of the earth and human life? Develop cracks or fractures on the earth's surface. Landslides हो सकते हैं, sliding of rocks हो सकता है which can destroy human life. Can lead to change in the course of ground water. जो अंदर ही अंदर ground water जा रहा है उसके course को change हो सकता है. Due to this, some wells may get water while some may get dried up. तो earthquake होने के बाद ऐसा देखा गया है कि कुछ wells में पानी खत्म हो जाता है और कुछ में पानी आ जाता है. ठीक है. They also lead to generation of tsunamis in oceans. These waves can cause great loss of life and property in the coastal areas. Avalanches occur in snow-covered areas due to earthquakes. The effect of earthquake on human life are as follows: buildings collapse during earthquakes, resulting in loss of life and property. Earthquakes can also disrupt the transport routes and communication systems. ठीक है. Different types of volcanoes. Tremendous loss of life and property. Dust, smoke, ash, gases, water vapor are given out during volcanic eruption. Several minerals are found. बहुत सारे minerals आ जाते हैं. Land fertile हो जाता है. Volcanoes occurring below the ocean floors can generate tsunamis. Volcanoes can also cause formation of new land or even lead to disappearance of islands. Also, lakes are formed at the mouth of craters of dead volcanoes when rainwater accumulates in them. तो ये है भाई साहब आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स. हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? बेस्ड ऑन वेलोसिटी, बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड बेस्ड ऑन लैंडफॉर्म्स. बेस्ड ऑन वेलोसिटी आपके दो क्लासिफिकेशंस हो गए, स्लो एंड सडन मूवमेंट्स. बेस्ड ऑन डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट्स. बेस्ड ऑन लैंडफॉर्म्स, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट्स एंड माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स. ठीक है. मूवमेंट्स, बिल्डिंग मूवमेंट्स आपके पास माउंटेन्स बिल्डिंग मूवमेंट्स जिनको हम ऑरिजिनिक बोलते हैं. फोल्ड माउंटेन्स एग्जांपल हिमालयस क्रिएट हुए हैं. ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स यूरोप में. रिफ्ट वैलीज एग्जांपल द रिफ्ट वैली ऑफ रिवर नर्मदा इंडिया. कॉन्टिनेंट बिल्डिंग एपिरोजेनिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड प्लेटूज. ठीक है. earthquakes, volcanoes, ये भाई साहब सब हो गए. ठीक है. Okay, that basically completes the chapter. Thank you so much for your valuable time.